most of the time, or we can say maximum, we have to deal with prose. And prose जो है वो we all know what a prose is, but knowing what a prose is, but teaching a prose, very different. Both are not same. You read a prose because you want to learn English, yeah, you want to entertain yourself, or you want to get some information so that your knowledge increases. But here in B.Ed class, you are exposed to uh, less to prose writing. We are more here concerned about prose teaching. तो prose teaching जो है बहुत important है, और बिल्कुल हमें एक proper, we should know the proper techniques or tools or the method approach, ताकि we can come out with maximum achievement from the student side, ताकि स्टूडेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके. और prose teaching is not just you teach a piece of paper, it is more than that. तो एक प्रोज क्या है, व्हाट इज अ प्रोज? मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, और उसमें एक सवाल है, वो सवाल आपको दिख जाएगा, और 6-7 ऑप्शंस हैं वहां पे, और those 7 or 8 options या statements are describing what a prose is. तो जो प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, ये सब आपने अपने ऑनर्स की क्लास में पढ़े होंगे. और जो नए हैं, नया कहने का मतलब जो जिनका ऑनर्स पेपर नहीं रहा होगा, या जिनका सब्सिडरी ये रहा होगा, या फिर लैंग्वेज पेपर एक रहा होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं ना ये प्रोज से उनका कांटेक्ट हुआ है. तो चैट बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको उसको क्लिक करना है, और यू हैव टू रजिस्टर योर ओपिनियन कि आपके ओपिनियन में प्रोज क्या है. सो let me give you the link. Just click on that link. Yeah, I have already said you have to just click on the link, and a window will open, and there are so many options there, and pick the right answer, what you think is a prose. Just click on the link and register your opinion about a prose. You will see here your opinions, and the question is, in your opinion, which of the following statements best described a prose? Okay, there is no right answer. There is not no right or wrong answer. It's just a statement. Maybe 2 or 3 opinions or a statement can be right, but you can choose whatever you think. These statements are describing the prose in best manner. And the statement, everyday writing that exhibit a grammatical structure and a natural flow of speech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The 7th statement has got, हमने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, और वो था कि in your opinion, which of the following statements best describe a prose? I mean, यहाँ पे आपको ये करना था कि आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोज क्या है, वो यहाँ पूछा गया था, और 9 बच्चों का रिप्लाई आया है, जिसमें जो 7th ऑप्शन है उनको ज्यादा वोट मिला यहाँ पर, जो कह रहा है कि एवरीडे राइटिंग दैट एग्जिबिट अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर and a natural flow of speech. That's okay.
हम लोग इसको समझ रहे हैं कि जो डे टू डे राइटिंग या डे टू डे जो हम रीडिंग के लिए तो हमारे सामने जो टेक्स्ट आता है वो ज़्यादातर जो है प्रोज में होता है, एंड प्रोज हैज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड अ फ्लो ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ रिदम। प्रोज जो है उसमें कोई मैट्रिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता, बट इवन यू कैन फाइंड द रिदम इन द प्रोज। तो यहाँ जो एक इसका जो पहला ऑप्शन था, ओपिनियन था, वो कह रहा था ऑर्डिनरी राइटिंग रिटेन विद सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, it can have dialects, but it is under quote or not or a paragraph may be full paragraph, may be a dialogue, but prose में क्या है कि there are dialects there, but it depends on the type of जो text होता है, I mean it's a short story or story or novel or something else। तो जो पहला ऑप्शन है कि प्रोज ऑर्डिनरी राइटिंग, everybody writes, or what they write, the first you can say style they adopt is prose। जो भी हम whatever we speak, whatever we write, or whatever we read comes to us in the form of prose। चाहे वो आपका व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे वो आपका ईमेल हो, और व्हाटएवर पेज हो, रिपोर्ट्स हो, जो भी, ये जो चीजें ये लिखी जाती है प्रोज में। तो वो यही कह रहा है कि एक ऑर्डिनरी, यहाँ पर मैं कोई राइट आंसर नहीं डाला, जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि हम आपको चेक करना चाह रहे थे कि हाउ फार यू कैन गो। तो आप सबने जो या सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स स्टेटमेंट था, आपने उसको टच नहीं किया। इट मीन्स कि आपको लग रहा होगा कि ये प्रोज को डिफाइन नहीं करता है। एक्चुअली इसमें 7 स्टेटमेंट्स हैं, और ये 7 के साथ जो स्टेटमेंट्स है वो प्रोज को डिफाइन कर रहा है, प्रोज के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है। इट्स सेइंग के व्हाट अ प्रोज इज। तो प्रोज कैन बी, prose is a type of ordinary writing. It has dialogues, it has character, it can entertain you, it can inform you, it can persuade you, or it can, जैसे मैंने कहा, it can inform you। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, whatever I'm speaking to you, ये सब जो है ये प्रोज है। लेकिन जब हम प्रोज के एक दूसरा पार्ट पोएट्री में जाएंगे तो हमें ये चीज नहीं मिलेगा। तो उसका दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रोज कंटेन्स वेरियस एलिमेंट्स such as themes, chapter, characters and settings। No doubt every prose has this type of element। For example, it has a theme। आप कोई भी एक नॉवल उठा लीजिए, शॉर्ट स्टोरी उठा लीजिए, कुछ भी, या एडिटोरियल उठा लीजिए, इट हैज अ थीम। अब ऐसा नहीं कि पोएम में थीम नहीं है, पोएम टू हैज अ थीम, बट the structure, the way a poem is written is quite different from the way a prose is written। So ऐसा नहीं कि एकदम लूज पार्ट है, कि प्रोज जो है लूज पार्ट है ना। एक जो बेस्ट प्रोज एग्जांपल हो सकता है उसमें यू कैन फाइंड थीम, इट मे हैव कैरेक्टर्स, और इट इज divided in chapters, but poetry too has character। आप जो है जॉन मिल्टन का आप ले लीजिए पैराडाइज लॉस्ट, इट इज इन वर्स फॉर्म, but it has character, it has theme, it has plot। या फिर आप कैंटरबरी टेल्स ले लीजिए, या द ईव ऑफ
या फिर आप कोई भी जो कि जो पोएट्री होती है और वो खुद एक अपने आप में एक बुक होती है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। आप में से किसी ने इसको टिक नहीं लगाया, आपको लगा कि जो प्रोज है उसके उसमें थीम नहीं पाया जाता, कैरेक्टर नहीं होता, चैप्टर नहीं होता, सेटिंग नहीं होता। एवरी प्रोज राइटिंग हैज these features. It has a beginning, it has a end, and it has a middle. तो एक स्ट्रक्चर है उसमें, आप ऐसे लिखते हो। इससे में क्या है कि आप फर्स्ट पैराग्राफ यू इंट्रोड्यूस, and the second and fourth paragraph explains, and the fourth and the last paragraph, what you summarize. So it has a structure, it has a beginning, it has a middle, it has a end. तो ये भी है हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, ये भी हमारा प्रोज को डिफाइन कर रहा है। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, only one word it got used for chapter books, textbooks, newspaper article. Of course, ये जो आप देख रहे हैं ना कि जो बुक्स आती हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल आ गया, या कोई जर्नल्स हो गया, या शॉर्ट स्टोरी हो गई, या फिर कोई बुक है, टेक्स्ट बुक है, एवरीथिंग इज रिटन इन प्रोज फॉर्म। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी चीज को वन वे डिफाइन करते हैं, इट हैज वेरियस वेरियस सेट्स। तो यहाँ पे इसको एक वोट मिला है, वही फोर्थ को देख लीजिए, एक भी वोट नहीं मिला। वो क्या कह रहा है, रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस एंड फॉलोज ग्रामेटिकल रूल्स। देखिए कोई भी आप प्रोज फॉर्म ले लीजिए, मे बी इट्स एसे और स्टोरी और पैराग्राफ, कुछ भी आप ले लीजिए, आप क्या देखते हैं उसमें? उसमें होता है सेंटेंसेस, सेंटेंसेस हैज वर्ड्स। तो सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस मिलकर एक पूरा पैराग्राफ तैयार करता है, पैराग्राफ एंड पैराग्राफ मिलकर एक पूरा जो है चैप्टर तैयार करता है, या आप कह लीजिए कि ऐसे तैयार करता है। और क्या प्रोज का कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है? बिल्कुल है। आप ये जो मैं लिखा हूं, इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब अ प्रोज, इसमें क्या ग्रामर नहीं है, बिल्कुल ये खुद अपने आप में एक प्रोज फॉर्म में लिखा गया। तो जो भी प्रोज होता है वो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो लिखी जाती है, और ग्रामेटिकली उसको करेक्ट बनाया जाता है। कोई भी ऐसा प्रोज आप देख लीजिए, उसमें ऐसा नहीं कि ग्रामर नहीं होगा। ग्रामर ही वो जो पूरी पैराग्राफ है या विद इन पैराग्राफ जो सेंटेंसेस है, वो उसको बाइंड करके रखता है। उसी तरीके से जो आपका पांचवा है, एक वर्ड उसको मिला, ये कह रहा है यूज्ड नॉवेल, बायोग्राफी, एसे, कॉमेडी एंड नैरेटिव, मैगजीन्स। तो ये एग्जांपल्स हैं। जो प्रोज फॉर्म है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? नॉवेल में, बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में, एसेज में, स्टोरीज में, चाहे कोई नैरेटिव हो, उसमें वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये जो भी लिखी जाती है, ये सब चीजें जो है वो प्रोज फॉर्म में लिखे जाते हैं। वही आपका जो छठा है, उसको एक भी वोट नहीं मिला। ये कह रहा है क्रिएट वर्ड पिक्चर्स, डिस्क्राइब मोमेंट्स एंड एक्सप्रेस फीलिंग। तो प्रोज देखिए, प्रोज में होता क्या है, आप कोई भी एक उठा लीजिए, आप कोई भी एक सिंपल सी, सॉरी वो तो आप मान लीजिए कि एक जो है हम कोई भी हम जो है एक 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 चैप्टर ले लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक होता है उसको कोई भी हम चैप्टर ले लेते हैं, और आप क्या वहां पाते हैं कि वर्ड्स जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज को। जैसे कि अगर कोई कह रहा है कैरेक्टर किसी बेड पे लेटा हुआ है और वो खर्राटे ले रहा है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रोज फॉर्म में है, लेकिन
हम वर्ड का इस्तेमाल करके एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं. बाय यूजिंग वर्ड वी आर क्रिएटिंग अ पिक्चर. तो प्रोज क्या है? प्रोज मीन्स कि with the help of words you can create picture. तो उसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब मोमेंट्स. आप अगर आप मेमोir लिखते हैं, आप बायोग्राफी लिखते हैं, अपनी लाइफ की स्टोरी लिखते हैं या किसी और को लिखते हैं, तो जो वो भी प्रोज फॉर्म में होता है. उसके बाद एक्सप्रेस फीलिंग्स. हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम जैसे बायोग्राफी लिखते हैं या ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, कोई नैरेटिव लिखते हैं, कोई पर्सनल नैरेटिव होता है उसको लिखते हैं. इन सब का इस्तेमाल जो है हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में करते हैं. तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रोज है वो वर्ड पिक्चर क्रिएट करता है. और वट एवर मोमेंट वी हैव, मे बी इट्स हैप्पी मोमेंट और सैड मोमेंट, उसको भी ये डिस्क्राइब करता है. और सातवां, जो कि बहुतों ने इसको वोट दिया है, 5 बच्चों ने इसको वोट दिया है, वो ये कह रहा है एवरीडे राइटिंग दैट एग्जिबिट्स अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच. इसको सबसे ज्यादा वोट मिला. वाकई आपको लगा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये अच्छे तरीके से जो प्रोज है उसको डिफाइन कर रहा है, वाकई कर रहा है. तो इस 7 जो हमारा स्टेटमेंट्स है, 7 स्टेटमेंट्स, ये सब के सब पोएट्री को, सॉरी प्रोज को डिफाइन करता है. तो हम जो है प्रोज की तरफ हम गए और वी हैव सीन कि प्रोज has character, setting, description, even dialogues, some themes. और जो ये बिल्कुल अलग है कि हम कहते हैं ना कि व्हाट अ पोएम, तो ये मैट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है पोएम. लेकिन प्रोज में ऐसा कुछ नहीं होता. वो प्रोज इज नॉट रिटन इन मैट्रिकल फॉर्मेशन. जैसे कि आप पोएम पढ़ते हैं उसमें आपको राइम मिलता है, उसका अपना एक मीटर होता है, ए बी सी, ये उसका एक मीटर होता है, उसका मैट्रिकल सिस्टम होता है जो कि पोएम जो है या पोएट्री जो है वो फॉलो करता है. लेकिन प्रोज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो अब यहां से जो है एक दूसरा सवाल उठता है कि व्हाई वी शुड टीच प्रोज. मतलब पढ़ने के लिए तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोज हम क्यों पढ़ाएं? प्रोज हम आखिर पढ़ाएं तो क्यों पढ़ाएं? तो अगर आप अपने आसपास के कोई भी एक स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है, आप वहां चले जाइए और किसी एक क्लास को आप चुन लीजिए और वहां पे आप एक रीडिंग फ्लुएंसी टेस्ट आप लीजिए कि कौन बच्चा पढ़ सकता है, कौन बच्चा पढ़ सकता है. मान लीजिए कि आप 5th क्लास में चले गए, आपने देखा बच्चे एकदम है वो, आपने 5th क्लास के लेवल का आप उसी का एक टेक्स्ट बुक निकाला उसके बैग से और आपने कहा कि स्टार्ट रीडिंग. अब वहां पे क्या वो रीड कर पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, हंस रहा है, क्या कर रहा है? अब वहां निकल के आप चले जाइए 1 क्लास में, 2 क्लास में चले जाइए और उस जो उसकी 2 क्लास की जो बुक है वो उसको कहिए पढ़ने के लिए. मे बी सेम रिजल्ट यू कैन गेट. और फिर आप 5th में आइए उस 2nd क्लास की बुक को लेकर और तब कहिए उसको पढ़ने के लिए. मे बी इट्स पॉसिबल कि दे कैन रीड द 2nd क्लास बुक. इट मीन्स कि वो 5वीं जो लेवल है वहां पे नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि उसको 5वीं क्लास में है तो 5वीं क्लास की चीजें उसको पढ़ने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है.
लेकिन वही जो 2 क्लास की टेक्स्ट बुक है वो उसको आसानी से पढ़ ले रहा है। तो ये क्या हो गया कि जो हमने ये देखा, इससे ये हम पता कर सकते हैं कि जो 5th क्लास स्टैंडर्ड है वो 2 क्लास के स्टैंडर्ड के टेक्स्ट को आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन 5th जो उनका अपना लेवल है वहां पे नहीं पढ़। तो ये जो एज हुआ 5th क्लास में है, लेकिन 2nd क्लास के बुक्स को वो पढ़ रहा है, टेक्स्ट को वो पढ़ पा रहा है। तो अब वो 5th का तो है लेवल, लेकिन लेवल क्या है वहां पर 2 का हो गया वो। तो आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, बस एक छोटा सा आप टेस्ट लीजिए, और इन सब का जो वो नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं वर्ड को प्रोनाउंस कर पा रहा है, उसका सिंगल रीजन होगा कि जिस तरह से उनको पढ़ाया जाता है वो काफी नहीं है। बल्कि एक जो टीचिंग सिस्टम होता है वो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो पढ़ पाएगा। तो अगर हम प्रोज टीचिंग को हम देखना चाहते हैं तो हम उसको रीडिंग से देखेंगे, और जो भी टेक्सुअल मटेरियल होता है वो सब के सब रीडिंग मटेरियल होता है। अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो समवेयर यू लैक रीडिंग, यू लैक द एबिलिटी टू रीड। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो काफी, जो उसका मेयार होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, उससे नीचे है वो। और वो इसलिए है कि जो क्लासरूम में प्रोज टीचिंग होता है, जो स्टोरी बच्चों को पढ़ाई जाती है या ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये उस प्रॉपर वे में उनको टीच नहीं किया गया। मतलब कि उनका जो एक्सपोजर है वो जो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इंग्लिश एटमॉस्फेयर, वो प्रोज टीचिंग जो है, अगर आप प्रोज टीचिंग पे फोकस करते हैं तो क्या होगा कि वो जो बच्चा है उसकी जो रीडिंग एबिलिटी है, रीडेबिलिटी है, वो इम्प्रूव करेगा। आप जब प्रोज टीचिंग की बात करते हैं तो हम क्यों करते हैं, क्यों प्रोज हम टीच करें? अगर आप देखें तो if you are teaching prose, for example you are teaching a chapter from any textbook, तो वहां पे आप सिर्फ प्रोज टीच नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप सिर्फ कहानी उनको नहीं सुना रहे हैं, बल्कि कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम जब हम प्रोज टीच करते हैं तो हम वो जानते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है जब हम प्रोज टीच करते हैं तो वी टीच वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग। हम लोग जो है हम लोग सिर्फ वोकैबुलरी याद करते हैं, और क्लास में जो भी टेक्सचुअल मटेरियल है उसका ट्रांसलेशन टीचर जो है वो करके वो समझाने की कोशिश करते हैं। बट जो रियल प्रॉब्लम है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन which is based on that chapter। तो रीडिंग अगर हमने उनको, अगर आप प्रोज टीच कर रहे हैं तो यहाँ पे कई तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं जिसपे हमें फोकस करना होता है और आपको करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जो ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश टीचिंग का वो जो है वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो अगर हम प्रोज टीच करते हैं तो हम एक तरह समझिए कि हम बच्चों को ग्रामर टीच कर रहे हैं, और जब ग्रामर कंटेक्चुअल होता है तो फिर वो इम्पैक्ट करता है कि आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि इफ यू आर टीचिंग ग्रामर नाउन, बट whatever example you are giving is not from the book, या from the chapter you just taught। आप क्या करते हैं
कि जो भी नॉन के लिए एग्जाम्पल होते हैं आप बाहर से लेकर आते हैं, नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो ये ग्रामर हो गया टीचिंग आइसोलेशन में। तो आइसोलेशन में आप ग्रामर टीच कर रहे हैं, ठीक है, आप नॉन टीच कर रहे हैं, आप प्रोनाउन टीच कर रहे हैं, आप इडियम्स टीच करना चाह रहे हैं, या आप फ्रेजेस टीच करना चाह रहे हैं, या आप एडजेक्टिव कैसे फॉर्म होता है, डिग्री कैसे चेंज होता है, वो आप टीच करना चाहते हैं। तो आप उसको कनेक्ट कीजिए उस चैप्टर से। और ऐसा नहीं है कि जो भी चैप्टर लिखी जाती है उसमें बहुत तरह के ग्रामेटिकल पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी एक जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसमें लिखा हुआ था, इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब अ प्रोज। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन है तो उसका एक फॉर्म भी है। अब यहां पे हम फॉर्म पढ़ रहे हैं, हम प्रोज टीच कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या टीच कर रहे हैं, एक फॉर्म टीच कर रहे हैं। कौन सा फॉर्म? क्वेश्चन। कैसे आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब हम प्रोज टीच करते हैं तो हम एक तरह से समझिए कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो हम टीच कर रहे हैं, हम ग्रामर टीच कर रहे हैं। कभी भी ग्रामर को आइसोलेशन में नहीं पढ़ाना चाहिए। हम लोगों ने जो हम लोग को जो पढ़ाया गया था बिल्कुल आइसोलेशन में, उसको चैप्टर से कोई मतलब नहीं होता था। हालांकि चैप्टर में कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट इनहेरेंट होते हैं और you can easily deduct if you deep read the textual material, you can come out with so many grammatical point on which you can discuss। सिंगुलर प्लूरल भी वहां मिल जाएगा आपको, जेंडर मिल जाएगा आपको, वहां पे नॉन मिल जाएगा, नॉन में भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन मिल जाएगा आपको विद इन दैट चैप्टर। ग्रामर को आइसोलेशन में टीच न करके वी एसोसिएट द ग्रामेटिकल पॉइंट to that chapter। So when we are teaching prose, we are teaching grammar। लेकिन when you translating the text so that your student will get it very easily, you are not teaching the prose। Translation is not translating, or textual material is not teaching the prose। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, वो बिल्कुल है, बट when you decide to teach, that matters will not work always। You just translate a paragraph sentence by sentence। if you are teaching by translation, you are not teaching at all। and if you are teaching grammar in isolation, you are not teaching। क्योंकि जो कनेक्शन होता है ग्रामर का सेंटेंस के साथ, वो जो है उतने बेहतर ढंग से वो नहीं समझ पाए। तो जब हम प्रोज टीचिंग की बात करते हैं तो हम रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। और वो जो रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन है, उसमें जब हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि हम ग्रामर की बात करते हैं, वोकैबुलरी एक्विजिशन की बात करते हैं, राइटिंग स्किल की बात करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और जो फिगरेटिव लैंग्वेजेस होते हैं जैसे कि मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, कॉन्ट्रास्ट, ये जो इंग्लिश के हैं वो जानते होंगे, इनको हम डिक्शन कहते हैं, जो कि आपकी राइटिंग को काफी मोटिवेशनल करता है और डिस्क्रिप्टिव बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है, फिगरेटिव स्पीच। तो when we are translating the text, we are at all not teaching। तो हमें, क्योंकि when you translate,
आप you do not think about the basic element that is found in that chapter. For example, when you translating, you do not focus on grammatical structure. When you are translating, you do not focus on vocabulary. What vocabulary teaching? You just have the words and their meanings, nothing else. But the teaching vocabulary is not word and their meanings. Teaching vocabulary is different. और हम जब हम उस वाले एलिमेंट पे जाएंगे टीचिंग वोकैबुलरी में, you will see there are 10 to 12 points which you have to you have to prepare a lesson when you are going to teach vocabulary. लेकिन हमने क्या सीखा है? फॉर एग्जाम्पल 1-2 पेज का एक टेक्स्ट बुक स्टोरी है, कोई भी स्टोरी आप ले लो, और हम देखते हैं कि उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको टिक करते हैं, उसको बोर्ड पे लिखते हैं और फिर उसका मीनिंग लिख देते हैं, दैट्स एनफ. ये भी ट्रांसलेशन का पार्ट है. लेकिन वो जो है, जो जिसको हम पढ़ा रहे हैं, वो खुद को उस वोकैबुलरी से कनेक्ट नहीं कर पाएगा. और वोकैबुलरी टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नेग्लेक्टेड है. हम इस पे फोकस नहीं करते. हम फोकस करते हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन पे. हम फोकस करते हैं कि पूरा पैराग्राफ को एक कहानी की तरह हिंदी में या एनी अदर लैंग्वेज बता दिया जाए, और फिर जब टाइम आए उस आंसर का, तो वी सर्च द क्लू, वी लुक फॉर द क्लूज. So teaching English is not a big hurdle. It has been made and we have made it. आप में जितने भी लोग हैं, 10-12 जो भी लोग हैं, if you prepare yourself, I will teach student not English, not in the way I have been taught. तो इस तरीके से आप बदलाव ला सकते हैं. तो अगर हम प्रोज टीच करते हैं, वी आर टीचिंग ग्रामर, वी आर टीचिंग नाउन. इन एवरी पैराग्राफ वी से ओके, मान लीजिए कि जो मैंने आपको दिया था उसमें एक सेंटेंस था, ordinary writing written with sentences and paragraphs. Just think of it. Ordinary writing written with sentences and paragraphs. ये क्या है? अगर हम प्रोज टीच कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे ऑर्डिनरी राइटिंग रिटन क्यों आया? राइटिंग रिटन और राइटिंग के बीच में कोई ऑक्सिलरी और ये सब नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो ये टीच करने का है. देखिए क्या है कि प्रोज टीचिंग के अपने पर्पस है. एक तो एंटरटेनमेंट है, हम मजे के लिए पढ़ते हैं. एक तो होता है कि हम खुद को इन्फॉर्म करने के लिए पढ़ते हैं. लेकिन ये होता है कि हम प्रोज इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे लैंग्वेज सीखना है. वी हैव टू लर्न लैंग्वेज थ्रू प्रोज. हम ग्रामर की बुक ले आए, ग्रामर की बुक ओवरऑल वो प्रोज है. लेकिन जब हम प्रोज टीचिंग की बात कर रहे हैं, और जैसे अभी हमने बताया कि रिटन किया है with sentences and paragraph, dialogues can be placed in quotation mark, written to entertain, inform, persuade. यहाँ पे कितने सारे entertain, inform, persuade, फिर written आया, वहां पर ऊपर भी written आया. तो क्यों इसमें फर्क लग रहा है? तो ये जो डिफरेंसेस हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हम प्रोज के थ्रू अपने स्टूडेंट को बता सकते हैं. अगर हम प्रोज को कनेक्ट करें स्टूडेंट्स के लाइफ से,
तो यही प्रोज टीचिंग जो है उनको लैंग्वेज सीखने पे मजबूर करेगा। लेकिन हमारा प्रोज टीचिंग इतना वीक है कि एक सेंटेंस बनाने से पहले वी हैव टू थिंक so many times just to construct a single sentence. We think of subject, verb, object. Then we think of which word I should put here. We think what will be the structure if I have to make a question. Or for example, I have to give order. Question and giving order are two different, so their form differ. तो form भी अलग अलग होगा. Why should we start a imperative sentence with verb? Why we start? Why not we start any other sentences with verb? You cannot. आपको ऑर्डर करना है, bring a glass of water for me. लेकिन आप उसको कह सकते, would you like to bring a glass of water for me? Bring a glass of water for me and would you like to bring a glass of water for me, two different forms. और यही हमें जो है उस टेक्स्ट से निकालना होता है, so that we can teach our student these differences. दोनों में क्या फर्क है? Would you like to have, yeah, would you like to bring or bring a glass of water? Both has differences. Meaning are same, but the implication is different. Bring a glass of water can be an order. It can be an order. But would you like to bring a glass of water? It's not an order. It's a request. ये जो पैराग्राफ के within paragraph we find we have to pick out these type of structure and make a new lesson plan and then teach. और आजकल के जो टेक्स्ट बुक है काफी एडवांस आने लगे हैं, उसमें जो एक्सरसाइज होता है वो कई लेवल पे होता है. उस पे एक्सरसाइज एक ग्रामर लेवल का भी होता है, आपने देखा होगा. लेकिन वो जो ग्रामर एक्सरसाइज होता है वो उसी चैप्टर से होता है, वो बाहर से नहीं होता. अगर हमने प्रोज की टीचिंग इफेक्टिव बना लिया तो फिर हमारे बच्चों को इंग्लिश को देख के घबराने की जरूरत है ही नहीं, है ना. तो जब हम प्रोज टीचिंग की बात करते हैं तो हम उसके अंदर जो पैटर्न होता है हम उसको पहचानने की बात करते हैं और फिर उसी पे हम अलग अलग लेसन प्लान जो है छोटे छोटे लेसन प्लान होके बनाते हैं. लेकिन अगर आप ऐसे देखिएगा तो एक टेक्स्ट में तो कई तरह के पॉइंट्स आपको मिल जाएगा. सबका अगर लेसन बनाएंगे तो फिर वो जो हमारा चैप्टर है वो कब खत्म होगा. लेकिन ये पिछला चैप्टर और ये चैप्टर उसके बाद का चैप्टर सब कनेक्टेड होता है. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में नाउन के बारे में बता दिया है तो अब हम सेकंड में देख रहे हैं कि नाउन तो है लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि हमने बता सका रिमाइंड कराएंगे. सी अगर आप इसी में जो है कि ऑर्डिनरी रिटन राइटिंग, इसमें अगर हम कहेंगे भाई राइटिंग क्या है, राइटिंग है नाउन है. लेकिन हम बच्चों को पढ़ाएंगे राइट, रोट, राइटिंग ये सब वर्ब के फॉर्म है. तो कैसे ये नाउन है. जो इंग्लिश टीचर है he should think of every aspects of prose teaching. और वो खुद से सवाल भी करे, why writing here is a noun, why written here written, verb third, okay, past participle.
तो हमें क्लूज जो है वो टेक्स्ट बुक से ही निकालना पड़ता है. तो व्हेन वी आर टीचिंग प्रोज, वी आर टीचिंग ग्रामर, वी आर टीचिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर, we are teaching how a noun is used in a particular sentence. We teach, if we teach prose, we teach how a verb can be turned into noun, how an adjective can be made a noun, or vice versa. We teach them. अब अगर कहीं मान लीजिए कि वी आर व्हेन वी आर पासिंग थ्रू अ विलेज, we saw a deep wall, well, when we are passing through a village, we saw a deep wall. यहां पर हमने डीप लगाया, एडजेक्टिव है, लेकिन अब द डेप्थ ऑफ द वेल इज सो लोअर के you cannot, yeah, you are not able to look at the water. तो यहाँ पर जो हमने डीप का बोला, फिर हमने डेप्थ का बोला, you have to find out, you have to identify the words and their arrangement in a paragraph. So paragraph teaching is not simple translating. It's not storytelling. Okay, storytelling is good. We teach English through storytelling. It's a good type of, a good form of teaching. लेकिन हम वहाँ क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि वी आर टेलिंग द स्टोरी जस्ट टू इंटरटेन. आप कोई नॉवल उठा रहे हैं, आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं. आपने कभी उसके सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर है, ये वर्ड आया तो क्यों आया, कोई डिफिकल्ट वर्ड आप क्या करते हैं, जस्ट यू गो टू द डिक्शनरी एंड राइट दिस वर्ड, राइट द वर्ड एंड यू कम आउट अ मीनिंग. जस्ट फॉर अस जस्ट दैट इज इनफ. नहीं, ऐसा नहीं है. जब हम प्रोज टीचिंग करते हैं तो हम हर एक पॉइंट से हम बात करते हैं, जो कि अभी आगे जब हम लेसन प्लान इसको डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. राइटिंग स्किल्स, थ्रू टीचिंग प्रोज we can improve writing skill. Writing is not just transcribing or putting some alphabet. Writing is different. तो जब हम prose teach कर रहे हैं, we teach writing. When we teach prose, we teach reading. We teach vocabulary acquisition. We teach the meaning of. We do not say the meaning of, we teach the meaning of sentence. तो जो हमारा प्रोज है, जो प्रोज टीचिंग है, we have to be very careful when we plan a lesson on the prose. We have to know what type of prose it is. Is it an essay? It's a part of bigger story, or it is a narration. क्या है ये, किस तरह का ये प्रोज हम करने जा रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी है या बायोग्राफी है, पर्सनल नैरेटिव है, क्या है ये जो हम टीच करने जा रहे हैं. और उसी पे बेस्ड we form objectives. Based on the type of prose we form objectives. So when we teach prose, we are teaching vocabulary, we are teaching sentence structure, we are teaching figurative languages, we are teaching writing.